The warrior said nothing, for his mouth was full. The warrior said nothing for his mouth was full. The warrior said nothing for his mouth was full. And इसका मतलब है कि योद्धा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था. Hello everyone, welcome back to the channel. So today I'm bringing the most iconic openings from the best animated movie, which is Kung Fu Panda. So, what exactly are we going to do in this video? So, I have taken a short clip from the Kung Fu Panda movie and उस clip में जितने भी English dialogues होंगे, I will explain you all those dialogues and will provide you the Hindi translations for all of them. So, जिससे कि आप बोर भी नहीं होगे, साथ के साथ you can improve your English as well. So, if you want to learn English in the most fun and practical way, this video is for you because in this video we are not going to see any boring grammar rules or the theories. Alright, we'll just see a clip and translate the dialogues. That's it, and now let's go straight into the scene. Let's start. Alright, so now let's start with the first dialogue we are having in this clip. Let's see what is it. Tales of a legendary warrior. Okay, so the first dialogue is Legends Tales of a Legendary Warrior. Legends Tales of a Legendary Warrior. इसका मतलब है कि see legendary means जो दंत कथा हो, ठीक है? So दंत कथाओं में एक शानदार योद्धा की बात की गई है, ठीक है? So दंत कथाओं में एक शानदार योद्धा की बात की गई है. That is what they are trying to convey the message from this sentence. So what is the sentence? Legends tell of a legendary warrior. दंत कथाओं में एक शानदार योद्धा का जिक्र किया गया है की बात की गई है. लेट मी ट्राई इट इन हिंदी, जिसके बाद हम स्पीकिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं. सो दंत कथाओं में एक एक शानदार योद्धा की बात की गई है. ठीक है, क्या सेंटेंस है हमारा? Legends tells of a legendary warrior. Legends tells of a legendary warrior. And what does it mean? इसका मतलब है कि दंत कथाओं में एक शानदार योद्धा की बात की गई है. ठीक है, जो हमारा इंग्लिश वाला सेंटेंस है उसको बोलने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप अपनी फ्लुएंसी को अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ. सेंटेंस इज Legends tells of a legendary warrior. Legends tells of a legendary warrior. और इसका मतलब दंत कथाओं में एक शानदार योद्धा की बात की गई है. We are done with this. आगे देखते हैं. Whose kung fu skills were the stuff of legend. Okay. After that, they are saying कि whose kung fu skills were the stuff of legend. जिसकी kung fu की जो कला थी वो खुद में एक दंत कथा बन गई कि जिसमें खुद की जो उसकी kung fu की कला थी वो खुद में एक दंत कथा बन गई थी. ठीक है, so the sentence is whose kung fu skills were the stuff of legend. and इसका मतलब है कि जिसकी kung fu की कला खुद में ही एक दंत कथा बन गई थी. सो जिसकी कुंग फू की कला खुद में ही एक दंत कथा बन गई थी. ठीक है, तो सेंटेंस क्या है हमारा? द सेंटेंस इज whose kung fu skills were the stuff of legend. बोलने की प्रैक्टिस करते हैं. whose kung fu skills were a stuff of legend. whose kung fu skills were a stuff of legend. Okay,
अब हम करेंगे जो हमारा मीनिंग है उसको देखते हैं। इट मीन्स कि जिसकी कुंग-फू कला खुद में ही एक दंत कथा बन गई थी, जिसकी कुंग-फू की कला खुद में ही एक दंत कथा बन गई थी। ठीक है? आगे देखते हैं। He traveled the land in search of worthy food. After that, the sentence is he traveled the land in search of worthy first and it means कि वो पूरे देश भर में घूमता था। क्यों? ताकतवर दुश्मनों की तलाश में। ठीक है? वो पूरे देश भर में घूमता था ताकतवर दुश्मनों की तलाश में। Let me just write it. So he traveled the land in search of worthy first. वो पूरे देश भर में घूमता था ताकतवर दुश्मनों की तलाश में। ऑलराइट, सो क्या सेंटेंस है? वो पूरे देश भर में घूमता था ताकतवर दुश्मनों की तलाश में। आगे देखते हैं। I see you like to chew. ओके, आफ्टर दैट द सेंटेंस इज आई सी यू लाइक टू च्यू। आई सी यू लाइक टू च्यू व्हिच मीन्स कि मुझे लगता है कि तुम्हें चबाना बहुत पसंद है। च्यू मतलब चबाना। ठीक है? च्यू चबाना। सो आई थिंक यू लाइक टू च्यू व्हिच मीन्स कि मुझे लगता है कि तुम्हें चबाना बहुत पसंद है। आई थिंक यू लाइक टू च्यू मुझे लगता है कि तुम्हें चबाना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि तुम्हें चबाना बहुत पसंद है। ठीक है? What is the sentence? I think you like to chew. I think you like to chew, which means कि मुझे लगता है कि तुम्हें चबाना बहुत पसंद है। ठीक है? आगे देखते हैं। Maybe you should chew my fist. Alright, the next sentence is maybe you should chew on my fist. Maybe you should chew on my fist का मतलब है कि शायद तुम्हें मेरी मुट्ठी भी चबानी अच्छी लगेगी। ठीक है? या फिर इसको ये भी बोल सकते हो आप, तो क्यों ना तुम मेरी मुट्ठी भी चबा लो, तो क्यों ना तुम मेरी मुट्ठी फिस्ट इज दिस पार्ट। ठीक है? मुट्ठी। सो तो मे बी यू शुड च्यू ऑन माई फिस्ट इट मीन्स कि तो शायद तुम मेरी मुट्ठी भी चबा लो। आगे देखते हैं। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट इन हिंदी एज वेल। तो क्यों ना तुम मेरी मुट्ठी भी चबा लो। ठीक है? क्या सेंटेंस है? सो मे बी यू शुड च्यू माई फिस्ट तो क्यों ना तुम मेरी मुट्ठी भी चबा लो। ठीक है? आगे देखते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। The warrior said nothing, for his mouth was full. Okay, now they are saying that the warrior said nothing for his mouth was full, which means कि योद्धा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका जो मुंह था वो भरा हुआ था। ठीक है? योद्धा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था। ठीक है? सो इसका मतलब होगा कि so the warrior said nothing for his mouth was full and it means योद्धा ने
कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था। ठीक है, क्या सेंटेंस है हमारा? The warrior said nothing for his mouth was full. The warrior said nothing for his mouth was full. And इसका मतलब है कि योद्धा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था। आगे देखते हैं। Said nothing, for his mouth was full. Then he swallowed. Then he swallowed. Then he swallowed. swallow करने का मतलब होता है निगलना। Then he swallowed इसका मतलब कि फिर उसने निगल लिया, फिर उसने निगल लिया। ठीक है, swallow करने का मतलब निगल लेना। Then he swallowed which means कि then फिर उसने निगल लिया। ठीक है, so then he swallowed means फिर उसने निगल लिया। ठीक है, then he swallowed फिर उसने निगल लिया। आगे देखते हैं। And then he spoke. Enough talk. Let's fight. ओके, इसके बाद 3 सेंटेंस हैं बहुत जल्दी-जल्दी। देन ही स्पोक फिर उसने बोला, निकलने के बाद उसने बोला, क्या बोला? इनफ टॉक। इनफ टॉक का मतलब होता है बहुत बातें हो गई, ठीक है? बहुत बातें हो गई, लेट्स फाइट। लेट्स फाइट एंड लेट्स फाइट का मतलब ओके होता है कि चलो अब लड़ते हैं। तो क्या-क्या सेंटेंसेस थे? पहले उसने निगल लिया, उसके बाद उसने बोला, क्या बोला? बहुत बातें हो गई हैं, इनफ टॉक व्हिच मीन्स कि बहुत बातें हो गई हैं, चलो अब लड़ते हैं। सारे सेंटेंसेस को मैं एक बार हिंदी में लिख के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ तक हमने कर लिया था। देन ही swallowed व्हिच मीन्स कि तो फिर उसने निगल लिया, उसके बाद है देन ही स्पोक। देन ही स्पोक का मतलब फिर उसने बोला, ठीक है? फिर क्या बोला? इनफ टॉक। इनफ टॉक का मतलब बहुत बातें हो गई, ठीक है? बहुत बातें हो गई के बाद लेट्स फाइट। लेट्स फाइट का मतलब चलो अब लड़ते हैं, ठीक है? लेट्स फाइट चलो अब लड़ते हैं। गॉट इट? आगे देखते हैं। He, he was so deadly, in fact, that his enemies would go blind from overexposure to pure awesomeness. Okay, so this is a quite lengthier one sentence, okay? So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? He was so deadly, in fact, that his enemies would go blind from overexposure to pure awesomeness. ठीक है? इसका मतलब कि वो घातक था कि जो उसके दुश्मन थे, वो उससे पहले ही डर जाते थे। ठीक है? किस चीज़ से? उसकी जो यू कैन से उसकी जो शानदारता थी, उससे वो डर जाते थे। ठीक है? तो वो इतना घातक था कि उसके दुश्मन उसकी शानदारता देख के उससे पहले ही डर जाते थे। ठीक है? ऑसमनेस मीन्स शानदार था। ठीक है? इसका मतलब वह इतना घातक था कि उसके दुश्मन उसकी शानदारता को देखकर हियर दे आर सेइंग दैट ब्लाइंड मतलब अंधे हो जाते हैं। ठीक है? क्या सेंटेंस था हमारा? He was so deadly in fact that his enemies would go blind from
ओवर एक्सपोजर टू प्योर ऑसमनेस, इसका मतलब कि वह इतना घातक था कि उसके दुश्मन उसकी शानदारता को देखकर अंधे हो जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। Or awesomeness. Keep your mouth out. All right, again there are three sentences. My eyes, which means कि मेरी आंखें, ठीक है, मेरी आंखें. After that he is saying that and attractive, he is so awesome and attractive, मतलब कि वो कितना शानदार और आकर्षित है. ठीक है, वो कितना शानदार और आकर्षित है. He is so awesome and attractive, वो कितना शानदार और आकर्षित है. Attractive. How can we repay you? How can we repay you? यहाँ पे क्या सेंटेंस है? हाउ कैन वी रीपे यू. अब हाउ कैन वी रीपे यू का मतलब होता है कि हम आपका उधार कैसे चुका सकते हैं. ठीक है, हम आपका उधार कैसे चुका सकते हैं. क्या सेंटेंस है? हाउ कैन वी रीपे यू, इसका मतलब हम आपका उधार कैसे चुका सकते हैं. ठीक है, क्या सेंटेंस है? हाउ कैन वी रीपे यू, व्हिच मीन्स कि हम आपका उधार कैसे चुका सकते हैं. ठीक है, हाउ कैन वी रीपे यू, हम आपका उधार कैसे चुका सकते हैं. आगे देखते हैं. There is no charge for awesomeness. Then he says there is no charge for awesomeness. There is no charge for awesomeness, which means कि शानदारता के लिए कोई फीस नहीं है. शानदारता के लिए कोई फीस नहीं है. There is no charge for awesomeness means कि शानदारता के लिए कोई फीस नहीं है. ठीक है, शानदारता के लिए कोई फीस नहीं है. हाउ कैन वी रीपे यू, शानदारता के लिए कोई फीस नहीं है. सॉरी, देयर इज नो फीस फॉर ऑसमनेस, देयर इज नो चार्ज फॉर ऑसमनेस का मतलब कि शानदारता के लिए कोई फीस नहीं है. आगे देखते हैं. Or attractiveness. देन ही सेज और अट्रैक्टिवनेस, व्हिच मीन्स कि और आकर्षण के लिए भी नहीं है. और आकर्षण के लिए भी नहीं है. And with this, we are done with the clip. That's it. These all are with the dialogues, the legendary dialogues, the hilarious dialogues from the movie Kung Fu Panda. And we have done the translations for each of them. I hope you enjoyed the clip, the translations, the video. And अगर आपको ये सब पसंद आया हो, then please इस वीडियो को like कर देना. And मुझे comment section में ज़रूर बताना that which movie do you want me to do the next. Stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.